लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर। یہ برکتیں اور لعنتیں دونوں بائبل کے اندر موجود ہیں. آپ برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں، لعنت بھی کر سکتے ہیں. اس کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے. آپ جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. یہ دونوں باتیں بائبل کے اندر موجود ہیں. لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، اور ایک بات یہ بھی کہ لوگ اس کے لیے اتنے سنجیدہ بھی نہیں ہیں. خدا اس کے لیے بڑا سنجیدہ ہے، اور خواہ کہ لوگ نبیوں کے بارے میں غور سے آپ پڑھیں گے تو وہ بھی بڑے سنجیدہ ہیں. لعنت اور برکت کا نالج ان کے پاس تھا. خدا کے کلام میں ان دونوں کا ذکر ہے. آج یہاں پر جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ اس طرح سے ہے. استثنا 27ویں باب میں 16ویں آیت ہم نے پڑھی ہے. لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے. اور سب لوگ کہیں آمین. خدا نے جب موسیٰ کو یہ دونوں چیزیں سکھائیں اور لعنت اور برکت کی فہرست بنا کر دی، اور خدا نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا کہ وہ پہاڑ پر جا کر ان کو پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں اور لوگ غور سے سنیں. اگر ہم اسی باب کی 11ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو اس طرح سے لکھا ہے. 11ویں سے پڑھیے. اور موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاکید کر کے کہا. موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاکید کر کے یہ کہا کہ جب تم یردن پار ہو جاؤ جب تم یردن کے پار چلے جانا تو کوہ گرزیم پر شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور یوسف اور بنیامین کھڑے ہوں. وہاں پر جانا، یردن کے پار چلے جانا، اور وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے؟ کوہ گرزیم میں وہاں پر جانا اور جا کر کچھ لوگوں کے نام دیے گئے کہ ان کو ساتھ لے کر جانا، اور یہ وہاں پر جا کر برکتیں پڑھیں اور لوگوں کو برکت سنائیں. اور لوگوں کو یہ پڑھ کر سنائیں. آگے. اور روبن اور جد اور عاشر اور زبولون اور دان اور نفتالی کوہ ایبال پر کھڑے ہو کر لعنت سنائیں. یہ کچھ نام ہیں جو آپ نے سنے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی ایبال پر جائیں اور وہاں پر جا کر لعنتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائیں. آگے پڑھیے. اور لاوی بلند آواز سے سب اسرائیلی آدمیوں سے کہیں کہ لعنت اس آدمی پر جو کاراگری کی صنعت کی طرح کھود ہوئی یا ڈالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے. اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین. سارے لوگ یہ پڑھتے جائیں اور سارے لوگ کہتے جائیں آمین. غور سے لوگ سنیں، یہ پڑھتے جائیں اور لوگ آمین کہتے جائیں. پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ پر بیٹھ کر برکتیں پڑھی جائیں اور سارے لوگ برکتوں کو سنیں،
और सुनने के बाद कहें आमीन। इसी तरह दूसरे पहाड़ पर दरमियान में कौम बैठे। दूसरे पहाड़ पर कुछ लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो लानतों को पढ़ें और लोग कहें आमीन। ये जो आमीन है, जब हम दुआ करते हैं, दुआ के बाद ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक शख्स खड़ा होकर दुआ करता है और बाकी सारी जमात आखिर पर जब यीशु मसीह के नाम से उसको बंद करते हैं दुआ को, तो सारी जमात कहती है आमीन। आप भी ऐसा किया करें। कोई एक शख्स उठकर दुआ करे, चर्च में हो या आपके घर में हो, जब दुआ खत्म करे तो आमीन सब इकट्ठे करें। इसका मतलब है कि जो दुआ ये शख्स कर रहा है, हम उसके साथ मुत्फिक हैं, हम इसके साथ हैं। ऐसा ही हो जो ये शख्स कह रहा है। यहां पर तो आदमी नहीं, खुदा कहता है। खुदा हुक्म देता है कि लोग कहें आमीन। यहां पर तो खुदा कहता है कि लोग इसको माने, बरकत को भी माने और लानत को भी माने। ये दोनों चीजें मानने वाली हैं। इनको दोनों इन पर यकीन कर लें। अब चूंकि हम मौजूदा जमाना में बहुत सारे अलूम सीख चुके हैं, जादूगरी, लोग बहुत कुछ इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में सीखा है, इसके खौफ में भी रहते हैं। बहुत सारे लोग जादू के खौफ में हैं, तवीज़ों का बड़ा खौफ है, बदरूहों का खौफ है। लानतों के बारे में इतने संजीदा नहीं है लोग, लानतों का इतना खौफ नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ये बताता हूं, मैंने बाइबल से सीखा है, जादू, बदरूहें, तवीज आपके लिए इतने खतरनाक नहीं हैं जितनी लानतें खतरनाक हैं। जिस पर ठहर जाती हैं बर्बाद हो जाता है। कलाम में लिखा है, पढ़ी जाए, पहाड़ के ऊपर जाकर पढ़ी जाए, लोग नीचे सुने, ऊंची जगह पर इसको पढ़ा जाए और लोग गौर से सुने। हर एक सुनने वाला ऊंची आवाज से कहे आमीन। हर एक को मानना पड़ेगा कि ये होती हैं, इसकी पावर है, इसकी ताकत है और बरकतों की भी ताकत है। हमने पिछले दिनों में सीखा, नबियों के बच्चे, इसहाक के बच्चे बरकत के बारे में कितने संजीदा थे और बाप से कहते हैं हमें बरकत दे, हमने बरकत लेनी है, यह हमारी जरूरत है। और किस तरह से एक भाई दूसरे से ज्यादा बरकत लेने के लिए संजीदा था। आज तो इसके लिए संजीदा नहीं है, ना तो लानतों के बारे में इतना गौर करते हैं, ना बरकतों के बारे में। और ये होती हैं, जिनके पास बरकत होती है वो कुछ भी करें, कोई काम करें, उनके हाथ में बरकत होती है, वो बढ़ते जाते हैं। और जिनके हाथ में लानत, जिन पर लानत ठहरती है, भी करें, डाउन से डाउन होते जाते हैं। कुछ लोग सोने का काम करने से, सोने का काम करते हैं लेकिन फिर भी डाउन होते जाते हैं। कुछ लोग मिट्टी का काम करते हैं तो भी अप होते जाते हैं। हमें मानना पड़ेगा बरकत और लानत को पावर रखती है। मानते हम इसके लिए इतने संजीदा नहीं भी हैं, तो भी बाइबल ये सिखाती है
खुदा और खुदा के लोग जो कलाम से वाकिफ हैं वो इस बात पर संजीदा हैं और गौर करते हैं। यहां पर जो हवाला हमने पढ़ा है वो उनके बारे में है जो अपने मां बाप को हकीर समझ। खुदा कहता है, खुदा ने सिखाया है, खुदा ने शरीयत दी है, ये कानून खुदा का है। खुदा ने कहा है, इस तरह से लिखा है, लानत उस पर जो अपने बाप या अपनी मां को हकीर जाने। लानत उस पर जो अपने बाप या मां को हकीर जाने। और सब लोग कहें आमीन। सब लोग संजीदा हों, सब लोग कहें आमीन। अब जरा गौर से बात सुनिए, कलाम किस तरह से बताता है। बाप या मां को हकीर जाने। एक तो होता है ना, मां या बाप के सामने बच्चे बदतमीजी करते हैं, बुरा बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, हाथ हटाते हैं। ये भी चीजें बाइबल में लिखी हैं। अगर कोई हाथ हटाता है, जान से मारा जाए, करता है, गर्दन कश है, उसको भी संसार किया जाए, उसको मारा जाए और उसका खून उसी की गर्दन पर पड़े। अब यहां पर तो ना गाली है, ना हाथ उठाने की बात है, ना बदजुबानी की बात है, सिर्फ हकीर जानना। हकीर जानना क्या है? कोई बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा, वो बोलता भी नहीं है, हाथ भी नहीं उठाता, बदजुबानी भी नहीं करता, सिर्फ अपने दिल ही दिल में हकीर जानता है। दिल में समझता है कि इसको समझ नहीं है, इतनी बात। ये मेंटल है। बाप या मां ये समझदार नहीं है। मैंने पहले भी आपको ये बताया था, जब जमाना बदलता है, तरक्की होती है, तो फिर बड़ी उम्र के लोग जो वो नए दौर के साथ मैच नहीं आते, तो लोग समझते हैं कि ये पुराना बंदा, ये सादा है, ये इसको नहीं समझ। या फिर ये कि जब वो बड़ी उम्र, ज़हन इतना काम नहीं करता, जैसे बाकी सारी चीजें हैं, टांगे कमजोर होती हैं, हाथ पांव कमजोर होते हैं, तो दिमाग का भी थोड़ा समस्या होता है। कई जगह पर वो इतना क्लेवर नहीं होता, इतना चुस्त नहीं होता। बच्चे चूंकि नए दौर के होते हैं, वो अपने दिल में वालिदैन को हकीर समझना शुरू कर देते। ये आम सी बात है, इसको मजाक में भी कह देते हैं। बाइबल कहती है उन पर लानत ठहर जाती है। अगर किसी पर लानत ठहर जाए, किसी शख्स पर, तो क्या वो अपने काम में या अपनी चीजों में बरकत हासिल कर सकता है? दो चीजें इकट्ठी नहीं चलती, या तो किसी पर बरकत है या किसी पर लानत। दोनों इकट्ठी नहीं चलती, एक ही को लेना पड़ता है। यहां पर लिखा है लानत उस शख्स पर, उस आदमी पर जो अपने बाप पर या अपने मां को या बाप को हकीर, दिल में हकीर समझता है। और लोग कहें आमीन। बहुत सारी और भी बातें हैं जिनके साथ ये लिखा है कि लोग कहें आमीन, लेकिन बारी बारी से इन सारी बातों पर गौर करेंगे। मैं ये सिर्फ एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, लानत और बरकत में हमें कितना संजीदा होना चाहिए, हमें इसके बारे में कितना फिक्रमंद होना चाहिए, कितना हमें इसके बारे में गौर करना चाहिए। अगर हम इसको, बाइबल को शुरू से पढ़ते हैं, इस तरह से मिलता है। जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने उसके सबब से जमीन पर लानत भेजी।
जमीन लानती हुई। ये पैदाइश के 30 बाब की 17वीं आयत 17वीं आयत पढ़िए। पैदाइश और आदम से उसने कहा, आदम से खुदा ने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मान ली है और उस दरख्त का फल खाया उस दरख्त का फल खा लिया है जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था मैंने जिसके बारे में तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खा, फल को नहीं खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती ठहरी। आगे, मशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर की पैदावार खाएगा, उम्र भर तू मशक्कत करेगा, पैदावार इसकी खाएगा, और वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तेरे लिए ये कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा, और खेत की सब्जियां भी खाएगा, तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, जब तक के जमीन में तू फिर लौट ना और जाए। इसी जमीन में जिस पर लानत ठहर गई इस आएगा, इसमें वापस लौट जाएगा। खुदा ने आदम से कहा, खुदा ने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और खुदा के कलाम को रद्द कर दिया, तेरी वजह से जमीन पर लानत ठहर गई है। अब तू इसे बोएगा फसल के लिए, ऊंट कटारे देगी। कोई जिम्मेदार अपनी जमीन पर कभी ऊंट कटारे बोता है? खुद ही उगते हैं। बीज बोता है, बीच में ऊंट कटारे आ जाते हैं। ऊंट कटारे बोता नहीं। जमीन पर चूंकि लानत ठहरी है, ये ऊंट कटारे देती है। अब इसकी वजह क्या थी? वजह थी खुदा की नाफरमानी, गुनाह की वजह से जमीन पर लानत ठहरी। फिर यही जमीन जिस पर लानत ठहरी थी, इसी जमीन के बारे में आगे पढ़ते हैं 4 बाब में। ग्यारहवीं आयत पढ़िए। और अब तो जमीन की तरफ से लानती हुआ, अब तू चूंकि तूने जमीन पर अपने भाई को कत्ल किया, खुदा कहता है जमीन पर उसका खून मुझे पुकार। मुंह पसारा के तेरे हाथ से भाई का खून ले, उसने मुझे पसारा कि वो तेरे भाई का खून तुझसे ले, इसलिए जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। तेरे लिए जमीन, तू जमीन को जोतेगा पर जमीन तुझे पैदावार नहीं देगी। ये कान के लिए जमीन तुझे पैदावार नहीं देगी। तू जमीन पर फसल डाले, बीज डालेगा, फसल नहीं मिलेगी, क्योंकि जमीन ने तुझ पर लानत कर दी। पहले गुनाह ने जमीन को लानती किया, अब जमीन उसको लिखा है कि और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, अब बंदा लानती हो गया। जमीन ने उसके लिए इनकार कर दिया कि मैं इसे फसल नहीं दूंगी, क्योंकि इसने अपने भाई को कत्ल किया है। फिर अगर गिनती की किताब उसके 35वें बाब में 33वीं आयत पढ़िए। सो तुम उस मुल्क को जहां तुम रहोगे खुदा नापाक ने ना कहा, करना। बनी इस्राएल कौम को कहा, जिस मुल्क में तुझे भेजता हूं, जब तुम वहां पर जाओगे तो उस जमीन को नापाक ना करना, क्योंकि खून देता है, क्योंकि खून मुल्क को नापाक कर देता है। और उस मुल्क के लिए जिसमें खून बहाया जाए सिवा कत्ल के
खून के और किसी चीज का कफारा नहीं लिया जा सकता। खून जमीन को नापाक कर देता है। जमीन मुखालफत करती है आदमियों की, जमीन नापाक। बाइबल यह कहती है जमीन इंसान के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि खून की वजह से। और खुदा ने कहा जब तुम उस मुल्क में जाओ तो वहां पर जाकर जमीन को नापाक ना करना। और यह बताया कि जमीन खून की वजह से नापाक, जब खून बहाया जाता है तो जमीन नापाक हो जाती है। इस तिश्ना में 27वें बाब की 24वीं आयत पढ़िए। लानत उस पर जो अपने हमसाया को पोशीदगी में मारे। लानत उस शख्स पर जो अपने हमसाया को पोशीदगी में मारे। कहें आमीन। सारे लोग कहें आमीन। खून ने जमीन को नापाक कर दिया, खून की वजह से जमीन नापाक हुई। और बाइबल में लिखा है ये जमीन फिर तेरे लिए क्या करेगी? जब ये नापाक होगी, ऊंट कटारे लगाएगी, ब्लेसिंग जमीन पर से उठ जाएगी तेरे लिए। किया और गुनाह की वजह से जमीन नापाक ठहरी। जमीन तेरी वजह से नापाक ना हो, इस पर भाई का खून ना आए। अब खुदा जानता है कि किसी गुनाह की वजह से किसी शख्स पर लानत ठहर जाती है। खुदा इस बात से वाकिफ है और खुदा ने यह बात मूसा को दी। अब मूसा इस बात से वाकिफ हुआ। अब मूसा के बाद और जितने लोगों ने सुना वो सब लोग अपने मुंह से कहने लगे आमीन। और फिर क्या होगा? 24वीं आयत पढ़िए, इसी 28वें बाब की 24वीं आयत। इस तिश्ना में 28वें बाब की 24वीं आयत। खुदावन मी के बदले तेरी जमीन पर खाक और धूल बरसाएगा। खुदा जमीन पर, जमीन जब गलत चीजें देना शुरू करती है, खुदा मी के बदले तेरे लिए जमीन को इस तरह से बना देगा कि वो मी के बदले तेरी जमीन ही तेरे लिए खाक और धूल बरसाएगी। ये आसमान से तुझ पर पड़ती ही रहेगी जब तक तू हलाक ना हो जाए। पड़ती जाएगी, पड़ती तक तू हलाक ना हो जाए। सुनिए, गौर से सुनिए। मी के बदले आग, खाक और धूल बरसाएगी, बरकत नहीं आएगी। जमीन खिलाफ हो जाती है। जिस पर लानत ठहरती है जमीन उसके खिलाफ हो जाती है। और खुदा कहता है ये तेरे लिए अच्छा काम नहीं करेगी। आज अगर आप अपनी धरती की बात करें, यहां पर खून बहुत ज्यादा होता है। दहशतगर्दी, बम ब्लास्टिंग, एक टाइम में कितने कितने लोग कत्ल करना, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जमीन इंसान के खिलाफ होती जा रही है। अगर आप, मुझे दूसरी दुनिया का मुझे इल्म नहीं है, पाकिस्तान में पानी जमीन का नीचे जा रहा है, यह बरकत नहीं है। पानी आपसे दूर होता जा रहा है। हर साल पानी पहले से नीचे जा रहा है। आपको लंबे लंबे बोर करवाने पड़ते हैं, बोरिंग काम नहीं करता। जमीन पर पानी बहुत नीचे चला गया और जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये कब तक बढ़ता जाएगा? हमें इसके लिए भी संजीदा होने की जरूरत है। इसके लिए भी दुआ करने की जरूरत है। इसके लिए भी गुनाह करने की जरूरत है। जमीन लानती होती है और फिर लानत ठहर जाती है उस शख्स पर जो जमीन पर गुनाह करता है।
फिर एक और शख्स की बात करता हूं पैदाइश की किताब में, पांचवें बाब में 28वीं आयत। पैदाइश 5वां बाब 28वीं आयत से पढ़िए। और लमक 182 वर्ष का था लमक 182 वर्ष का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ। जब उसका बेटा पैदा हुआ। उस वक्त लम 182 का था और यानी 182 वर्ष की उम्र में उसको बेटा मिला था जी। और उसने उसका नाम नूह रखा। उसने उसका नाम नूह रखा। आप जब अपने बच्चों का नाम रखते हैं, गौर करते हैं इस नाम के मानी क्या है? आपके पास नेट मौजूद है, कहते हैं उसका मानी तलाश करते हैं, आप डिक्शनरी ले लेते हैं, वहां पर मानी तलाश करते हैं, एक दूसरा नाम रखा जाए। लमक 182 वर्ष का था जब उसे बेटा मिला। उसने उसका नाम नूह रखा। क्या सोच कर नूह रखा? और कहा, सोच थी उसकी, सोच कर रखा, और ये उस नाम का मानी रखा जी। और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। आराम देगा। आप इस बात पर गौर करते हैं? गौर से सुनिए। लमक इस बात के लिए इतना संजीदा था और इसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए परेशान था कि जमीन, क्योंकि खुदा ने जमीन पर लानत भेज दी है। अब इसको कोई शख्स आए और इस पर बरकत बरसाए। तो उसको जब बेटा मिला, 182 साल की उम्र में उसको बेटा मिला, उसका नाम उसने नूह रखा। और यह कहकर रखा क्योंकि खुदा ने जमीन पर लानत बरसाई है, तो यह बेटा ऐसा हो, इस पर ऐसी बरकत हो कि ये कल को ये बेटा बड़ा होकर जमीन की लानत को खत्म करे और लानत पर बरकत डाले। यहां पर लिखा है कि उसने कहा कि जो जमीन जिस पर हम मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो फल सही नहीं दे रहे, ये शख्स ऐसा करे। ये कहकर उसने नाम रखा कि जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। मुझे ये बंदा बड़ा अच्छा लगता है और इस बारे में ये बड़ा संजीदा लगता है। उसको पता था कि लानत खत्म होना जरूरी है। पता नहीं जिसमें जा रहे हैं, बस ठीक है। अगर आपके पास बरकत नहीं है, अगर किसी जगह पर आप रुके हुए हैं, औलाद की वजह से परेशानी है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, बच्चे नहीं मिल रहे, सिर्फ बेटियां मेरी बेटे नहीं हैं, या कोई भी मामला है, गौर करना शुरू करें और इस पर बरकत मांगे इसके लिए, ताकि लानतें खत्म हो और बरकत ठहर जाए और वो चीजें जो रुकी हुई है वो फिर से बहाली हासिल करें। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा की सोच ये नहीं है कि वो आपको लानत दे, बल्कि खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा सिर्फ इन दोनों चीजों का इल्म देना चाहता है ताकि आप इनके लिए संजीदा हों। लमक इस बात के लिए संजीदा था, और जब उसने बेटा वसूल किया, बेटा उसको मिला, तो उसने नाम रखते वक्त ये सोच लिया कि ये बेटा लानत को खत्म करेगा। जिस पर खुदा ने लानत की है जमीन पर, उस पर बरकत। आगे लिखा है 32वीं आयत में, और नूह 500 वर्ष का था जब नूह 500 वर्ष का हुआ, उससे सैम, हाम और याफ्त पैदा हुआ। 3 बेटे उसको मिले।
तब उसकी उम्र 500 वर्ष की थी। आगे, और उससे सैम, हाम और याफ्त पैदा हुए। ये बच्चे उसके पैदा हुए। अगले चैप्टर में भी चलिए। जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे बहुत आदमी बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, उनके बच्चे पैदा होने लगे। तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा। यहाँ पर ब्रेक करें, मेरा मजमून यहाँ पर आगे नहीं बढ़ता। हाँ, आगे सुनिए। खुदा ने जमीन पर लानत दी। अब इसको कलाम में लिखा है, खुदा ने इसके बारे में कहा कि ये शख्स रासबाज था। ये शख्स रासबाज था। 500 साल तक तो इसके बच्चे नहीं थे। 500 साल के बाद इसको बच्चे मिलने शुरू हुए। फिर आगे जो वाकिफ है उसको मैं ज्यादा उसकी बात नहीं करूंगा, उस तूफान की बात नहीं करूंगा। उसके बाद क्या हुआ, जब ये बाहर निकलता है उससे, तो फिर एक काम करता है। वो आप पढ़े 8वें बाब में 20वीं आयत से। 8 पढ़िए। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। जब ये बाहर निकला तो इसने देखा कि जमीन पर से पानी नीचे चला गया है, खत्म हो चुका है, जमीन खुश्क हो चुकी है। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले जो काम करता है, ये खुदा के लिए मज़बा बनाता है। और सब पाक चपाहदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। पाक चपायों में से लेता है और खुदा के सामने इबादत करता है, कुर्बानी करता है। और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। जब इसने कुर्बानी की तो इसकी कुर्बानी मंजूर हुई। खुदा ने उसकी राहत अंगेज खुशबू ली। और खुदावंद ने अपने दिल में कहा, जब खुदा को कबूल किया तो खुदा ने अपने दिल में एक बात कही कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा। इंसान के सबब से मैं जमीन पर कभी लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है। क्योंकि इंसान का ख्याल उसने देखा कि ये लड़कपन से बुरा है। आगे नब की पहली आयत पढ़िए। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी। खुदा ने उसकी औलाद को, उसके बेटों को बरकत बख्शी और उनको कहा कि बार हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। खुदा ने उसके बेटों को बरकत दी और कहा ये जमीन को मामूर करें, ये बार हों। खुदा ने उस पर बरकत अंडेली। अब सुनिए, खुदा चाहता है कि लोग लानत से निकल जाएं और बरकत में आएं, लेकिन गुनाह इंसान को बरकत से दूर करता है। लमक इतना संजीदा है कि वो जमीन पर बरकत मांगता है ताकि लानत कम हो, लानत का जोर टूटे। अब उसके बेटे ने जो रासबाज था, उसे खुदा ने इस्तेमाल किया कुछ जानवरों और कुछ इंसानों को बचाने के लिए। जब वो जमीन पर जब खुश्क हुई तो आता है, तो पहले वो खुदा के काम करता है, कुर्बानी करता है। और जब खुदा उसके काम से खुश होता है तो खुदा अपने दिल में एक अहद बांधता है। खुदा अपने दिल में यह कहता है, आइंदा मैं ये करूंगा, जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा। फिर इसके बच्चों को उसने बरकत दी। हम अक्सर दफा इन बातों से नावाकिफ होने की वजह से इसके लिए इतनी फिक्र नहीं करते। मैं बहुत सारे लोगों से, मैं चूंकि काउंसलिंग करता हूं, तो जिन पर यह मसला होता है, औलाद नहीं होती,
یا ان کی برکت رک جاتی ہے, ان کا کاروبار رک جاتا ہے, یا میں ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں, اور کئی بار میں خود لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, لیکن لوگ اس کے لیے اتنے سنجیدہ نہیں ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لعنتیں ٹوٹ جاتی ہیں, لعنتیں ٹوٹ جاتی ہیں. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس پر کسی طرح کی لعنت ہے, اس کی ترقی رکی ہوئی ہے, بڑھنے کا, اس کو کاؤنسلنگ کروانے کی ضرورت ہے. خادموں کے پاس جائیں, اپنے معاملات ان کے پاس رکھیں, اور ان سے کہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں. سن رہے ہیں؟ ان کے لیے کلام کریں. کلام کے ذریعہ سے لعنت ختم ہوتی ہے. ایک کتاب آپ کی نظروں سے گزری ہے, بندنوں سے رہائی. پتہ ہے کسی کو؟ بندنوں سے رہائی. غالباً یہ میلنکی کی شاید کتاب ہے یہ. اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ بندنوں سے رہائی مل جاتی ہے, چھوٹا جا سکتا ہے. کلام کو غور سے سنیے, وقت زیادہ ہو گیا ہے. ایک تو ہمارا آنے کا ٹائم اس طرح کا ہوتا ہے کہ زیادہ پورے طور پر کلام نہیں سکھایا جاتا, وقت نہ ہونے کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جب نیٹ پہ چڑھتا ہے, یوٹیوب پہ لوگ لمبے میسج نہیں سنتے. شیطان کے لوگ 3 گھنٹے فلم دیکھ لیتے ہیں, خدا کے لوگ 1.5 گھنٹے کا کلام نہیں سنتے. نہیں نہ سنتے. شیطان کے لوگ 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتے ہیں, خدا کے لوگ 1.5 گھنٹے کا کلام نہیں سنتے, گھنٹے کا بھی نہیں سنتے, 40 منٹ کا بھی نہیں سنتے. کہتے بس والد صاحب بس چھوٹا جا. کبھی کبھی جنازے پہ یا کسی خاص وہ میموریل سروس پہ کلام سنانے کا موقع ملے تو پیچھے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے والد صاحب چھوٹا سا. اشارے کرتے ہیں کہ لوگ لمبا کلام نہیں سن سکتے, لوگ کلام کے لیے اتنے سنجیدہ نہیں ہیں. کلام برکت نازل کرتا ہے, کلام سے برکت ملتی ہے. اسی مضمون کو اگلی دفعہ پھر میں جاری رکھوں گا. یہ بڑا وسیع ہے.